تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلک بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ آج دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جائے گا، مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ آج دنیا بھر میں یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن ایک دن منا لینے سے مزدوروں کے حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ لڑکھڑاتے قدم اور سامان سے ڈگمگاتی یہ ریڑیاں کھینچتے زور لگاتے منزل تک پہنچانے میں مصروف مزدور روزی کی تلاش میں دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ملنے والی اجرت پسینے کا قرض پھر بھی نہیں اتارتی۔ 200 روپے 100 روپے تو اتنے کلو آٹا ایتھے روٹی کھانے ہیں تو روٹی اپنے ٹھڈ نوں گنڈ دے کے کھانے ہیں، ایک ٹائم کھانے ایک ٹائم بھوکے رہتے ہیں، چلو گھر بچوں کا گزارا ہو جائے گا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ مزدوری والا چکر کوئی نہیں ہے گا، سانو مزدوری بہت لبھی ہے، اسی بہت کما رہے ہیں۔ سویر سے 4 بجے سے اٹھے ہیں، ابھی 400 روپیہ پکڑے ہیں۔ جہاں مختلف غیر سرکاری تنظیمیں مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی دکھائی دیتی ہیں، وہیں شعراء حضرات نے بھی مزدوروں کی آواز حکام بالا تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ پاکستان میں محنت کشوں کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محنت کشوں کو ان کی محنت کے مطابق اجرت نہیں ملتی، گھر کا چولہا مشکل سے ہی روشن ہوتا ہے۔ مہربانی ہوگی مزدور کی اجرت بڑھائیں، ٹھیک ہے، اس کی مزدوری بڑھائی جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے مزدور کے لیے، جو ایک وقت کا کھانا اپنے بہن بھائیوں بال بچوں کے سامنے کے ساتھ شام کو بیٹھ کے آسانی سے کھانا کھا سکے، ٹھیک ہے۔ کم اجرت بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں، تپتی دھوپ میں کام کرنے والے مانگتے بھی ہیں تو صرف اجرت۔ دنیا بھر میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ محنت کش روٹی کے چکر سے نکلے گا تو اس دن کی اہمیت جان پائے گا۔ عالمی دن سے بے خبر مزدور آج بھی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کام کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ وسیم شہزاد رپورٹ کریں گے۔ یہ مناظر ہیں شہر اولیا کے مدنی چوک کے، جہاں عالمی دن سے بے خبر مزدور کسی ٹھیکیدار کی راہ تک رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی روٹی کے لیے پریشان مزدوروں کا کہنا ہے کہ جن کے نام سے چھٹی منسوب ہے وہ سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ چھٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ ہر کوئی چھٹی ہے، مزدوروں کو چھٹی نہیں ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر چھٹی کریں تو ہم کھا نہیں سکتے، ہمیں کچھ حکومت تعاون کرے ہمارے ساتھ۔ چھٹی اس لیے نہیں کی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم چھٹی کر لیں تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، اور یہاں کام ملتا نہیں ہے، اگر ملتا بھی ہے جو لوگ آتے ہیں جو کام 1000 کا ہے وہ 500 300 میں کروانا چاہتے ہیں۔ سارے واسطے عذاب ہے، نہ چھٹی ہے نہ کہیں جائے، سارے واسطے قید خانہ ہے۔ اپنے پاکستان ہے جیسا قید ہے، آزاد کیڑی نہیں آتے تو نہ سارے واسطے کوئی روزگار عوام لیکن پڑھے لکھے جنہوں کو تعلیم مل گئی وہ پڑھے لکھے اور اپنے گھر ستے ہیں، جہاں مزدور ہیں چھوٹے مزدوریاں واتے کسی نے۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ وہ کام کی تلاش میں مختلف چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سارا دن گزرنے کے باوجود بیشتر اوقات کام نہیں ملتا۔ جب کوئی شہری کام کرانے کے لیے آ بھی جائے تو اس پر ہجوم ٹوٹ پڑتا ہے۔ سارے حالات بہت خراب ہیں، ہے نا، مزدوری ملتی نہیں ہے، ادھر آتے ہیں شام کھڑ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم کیا کروں، کدھر جاؤں ہم۔ مزدوروں کا مزید کہنا ہے کہ پنجاب سرکار نے مزدور کی کم سے کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر رکھی ہے، مگر یہ دہاڑی بھی ان کی مستقل نہیں۔ ہمارے لیے مفت علاج ہے اور نہ تعلیم، دوسرے ملازمین اور شعبوں کی طرح حقوق اور مراعات دی جائیں۔ مزدوروں کا سر اتنا برا حال ہے کہ کبھی کسی مزدور سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اس کی پوزیشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ بتاتا وہ بھی روتا ہے کہ میں کیا کسی کو بتاؤں اپنا حال اور کیا کسی کو سناؤں۔ مزدوروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت غربت کے خاتمے اور مزدور کی بہتری کے لیے جامع پالیسی بنائے۔ عالمی یوم مزدور پر بھی شہر ملتان کی مختلف شاہراہوں کے کناروں پر مزدور چھٹی کرنے کے بجائے موجود ہیں۔ موجودہ مزدوروں کی صورتحال کو سوچتے ہوئے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں گے ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے لیٹر کمی کا اعلان، مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔
बावलपुर में गर्ल्स हॉस्टल हादसे का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मालिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा के बाद बगैर मंजूरी हॉस्टल बनाने की रिपोर्ट भी सामने आ गई। बावलपुर के इलाका रियाज कॉलोनी में गर्ल्स हॉस्टल हादसे का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। इंदराज मुकदमा के बाद बिल्डिंग का नक्शा मंजूर न करवाने का मामला भी सामने आ गया। मालिक ने इदारों को इतला दिए बगैर गर्ल्स हॉस्टल बनाया, जो कि गैर कानूनी है। इस हवाले से सरकारी इदारों की रिपोर्ट सामने आ गई। गर्ल्स हॉस्टल हादसे में 2 लड़कियां जहां बहक हुई थीं। पंजाब के बायोमेट्रिक सिस्टम को इस्लामाबाद के बायोमेट्रिक सिस्टम की तर्ज पर बनाया जाए। गाड़ियों के लिए बायोमेट्रिक की शर्त पर कार डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। इसी हवाले से मज़ीद देखेंगे वसीम शहजाद की रिपोर्ट में। कार डीलर्स ने पंजाब के बायोमेट्रिक सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर मुल्तान कार डीलर एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम का कहना था कि पंजाब में पहले पैसे जमा कराने के बाद आईडी निकलती है, जिसके बाद बायोमेट्रिक इशू होगा, फिर नंबर लगेगा। इस अमल से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर औकात जिनसे गाड़ी खरीदी जाती है वो सारे पैसे ले जाते हैं। बाद में वसूली कार डीलर्स के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। इसमें हमें प्रॉब्लम्स ये होती है कि कई दफ़ा वो जो जिनसे हमने गाड़ी से परचेज़ की होती है वो सारा पैसे और सारी अपनी चीज़ें ले जाते हैं। बाद में उनकी मर्ज़ी वो दें तंग करें, इसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सदर मुल्तान कार डीलर एसोसिएशन चौधरी तारिक करीम का कहना था कि पंजाब की बायोमेट्रिक को इस्लामाबाद की तर्ज पर बनाया जाए। एक दफ़ा गाड़ी रजिस्टर हो जाए और दूसरी दफ़ा ओपन बायोमेट्रिक दिया जाए, ताकि जिसको भी गाड़ी बेचे उसके नाम कर दें। इन्होंने कहा कि अगर मुतालबात ना माने गए तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मुतालबात पे गौर करें, नहीं तो फिर हम एहतजाज का हक़ रखते हैं हम, और हड़ताल का भी हक़ रखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की रोज़ी है, हमने यहीं से कमाना है और यहीं से खाना है। हमारे मुलाजमीन हैं और हमारे दूसरे हैं जो हैं, सब ने मिल के यहीं से खाना है। कार डीलर्स का कहना था कि पुरानी गाड़ियों को मौजूदा बायोमेट्रिक सिस्टम से इस्तिस्ना दिया जाए। पहले डॉलर की वजह से मुश्किलात का सामना है, रही सही कसर मौजूदा बायोमेट्रिक सिस्टम ने पैदा कर दी है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएंगे कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए नया तरीका सामने आ गया। बीज की बजाय पौधों की खेलियों में लगा दिया गया। महकमा ज़राअत और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नया तजुर्बा कर लिया। मज़ीद अपडेट करेंगे अपनी रिपोर्ट में अली रियाज। जनूबी पंजाब में कपास की काश्त जारी है। अब महकमा ज़राअत और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का कपास के हवाले से तजर्बा सामने आ गया। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीज के बजाय पौधों को खेलियों में लगा दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब हैदर करार का कहना था कि अगेती काश्त के लिए कपास की नर्सरी बनाना बेहतरीन तरीका है। अगर हमने अगेती कॉटन की बिजाई करनी है ना, वीट की भरपूर पैदावार के बाद, तो हम जो है ना नर्सरी लगा रहे हैं और इसको ट्रांसप्लांट कर दें, ताकि गंदम भी हमारी मुतासर ना हो और उसकी भरपूर पैदावार है, और हमारा जो है ना कॉटन भी भरपूर पैदावार है। डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सईद अहमद का कहना था कि खेतों में पौधों की तादाद पूरी करने के हवाले से नर्सरी बनाना बहुत ज़रूरी है। एक हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है सेक्रेटरी साहब के कहने पर। दोनों इसमें एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि हम गंदम से पहले 1 महीना पहले अर्ली कॉटन लगा लें ताकि वही हम शिफ्ट कर लें। दूसरा ये था कि पौधों की तादाद को पूरा कर लिया जाए फील्ड के अंदर। जो हम चाहते हैं कि 17,500 से 23,000 पौधों की तादाद 1 एकड़ में मौजूद हो, उसको भी इस तरीके से पूरा किया जा सकता है। कपास के पौधों की नर्सरी को 1 माह बाद खेतों में मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नकाशी फ़न की। ऊंट की खाल से तैयार सजावटी अशिया पर काशीगरी सदियों पुराना फ़न है, मगर सहूलियात ना होने की वजह से ये फ़न मादूम होने लगा। मज़ीद अपडेट करेंगे अपनी रिपोर्ट में सुहिरा तारिक। ऊंट की खाल से तैयार सजावटी अशिया पर काशीगरी सदियों पुराना फन है। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला नकाशी का ये फन दुनिया भर में मशहूर है। ऊंट की खाल से तैयार करदा गुलदान और लैंप पर खूबसूरत नकाशी की जाती है। ये फन दुनिया में बहुत मकबूल है, मगर नकाश और कारीगर अब कम होते जा रहे हैं। कैमल स्किन तो मुल्तान सदियों की पहचान है मुल्तान की, और दुनिया में सिर्फ इस स्टाइल का काम मुल्तान में होता है। घी के कुप्पे बनते थे, फिर गुलदान उस्ताद अब्दुल्ला ने लैम्प बनाए 1910 में, और अब तक मेरे वालिद साहब मलिक आशिक नकाश ने इस पर काफ़ी चीज़ें बनाई। अब तक इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें बन चुकी हैं। अब्दुर्रहमान नकाश तवील अरसे से नकाशी के फन से वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि बैरून ममालिक में इस काम की बहुत मांग है, मगर हमारे पास कारीगर ना होने की वजह से ऑर्डर्स मुकम्मल नहीं कर पाते। एक्सपोर्ट के लिए जब हम सोचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे पास नई नर्सरी नहीं है, नए बच्चे इस तरफ नहीं आ रहे। मैं बार कह चुका हूँ कि अगर हम इसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर कोर्स का हिस्सा बना दें,
आर्ट नक्काशी और जितनी भी क्राफ्ट हैं, तो आप देखेंगे ये फ़नून ज़िंदा हो जाएंगे। अब्दुर्रहमान नक्काश का मजीद कहना था कि नौजवान नस्ल में ये फ़न मुंतकिल ना किया गया तो जल्द ही ये मादूम हो जाएगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में खुसूसी बच्चों के स्कूल में रंगारंग ईद मिलन तकरीब सजाई गई। डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद की खुसूसी शिरकत। इस हवाले से मजीद देखते हैं अलिश बासिफ की रिपोर्ट। महकमा स्पेशल एजुकेशन मुतहरिक। मुल्तान में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम तालबात के स्कूल में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पे तालबात में चूड़ियां और तोहफे तकसीम किए गए। तकरीब में समाजी कारकुन नईम इकबाल नईम और डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद समेत तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्ची बता रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने ईद हमारे साथ सेलिब्रेट की और मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद का कहना था कि खुसूसी बच्चों को भी अपनी खुशियों में याद रखना चाहिए। तालबात में तोहफे तकसीम किए गए हैं ताकि इन्हें कोई कमी महसूस न हो। ईद मिलन पार्टी का इंतजाम किया है। स्पेशल बच्चों में हमने चूड़ियाँ और गिफ्ट तकसीम किए हैं ताकि स्पेशल बच्चे भी किसी लिहाज से अपने आप को महरूम मत समझें और ईद के लिए बेहतर से बेहतर अपने खुशियों को सेलिब्रेट करें। और तमाम स्टाफ मेंबर्स ने इन बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम किया। खुसूसी तालबात का कहना था कि इन्हें खुशी हुई है कि असातिज़ा इन्हें हर मौके पर याद रखते हैं। ये तोहफे इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान के शहरियों का गेमिंग जोन्स की जानिब रुझान बढ़ने लगा। लोग इतवार की छुट्टी एंजॉय करने के लिए गेमिंग जोन पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। मुल्तान के शहरियों का रुझान गेमिंग जोन्स की जानिब बढ़ने लगा। इतवार के रोज लोग अपनी फेवरेट गेम्स खेलने गेमिंग जोन्स पहुंच गए। किसी ने पबजी खेली तो किसी ने फीफा और कॉल ऑफ ड्यूटी। शहरियों का कहना था कि पीसी या प्ले स्टेशन गेमिंग करने से आपका जहन तेज होता है। यहाँ पे बैठे 4 लोग गेम कर रहे हैं तो इसमें यहाँ टेक्टिकली हम लोग बहुत चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब मैन वाइज इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि अगर 11 बंदों की टीम है तो हर लड़का क्या परफॉर्म करेगा, कैसे करेगा, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल यहाँ से ही होती हैं। जाहिर सी बात है। शहरियों का मजीद कहना था कि कई लोग ऑनलाइन गेम से बहुत पैसे कमा रहे हैं। मुल्तान में ज्यादा लोग ना ही गेमिंग जोन्स का रुख करते हैं और ना ही इस प्लेटफॉर्म का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स जो मना करते हैं, कुछ जो है वो हमारे आ जाते हैं पोश किस्म के, वो किसी शॉपिंग पे जाते हैं तो वो छोड़ के जाते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ तो रह कोई नहीं गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, प्ले ग्राउंड से नहीं है, तो फिर भी ये थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा वर्चुअल उसमें आ जाता है। शहरियों का ये भी कहना था कि पीसी और प्ले स्टेशन गेम सेहतमंदाना सरगर्मी है। कैमरामैन जैन के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।